Hello my dear student, how are you? I hope you all are fine. So student, today we will discuss about a question problem which is based on NCERT book. So let us start. Today I will discuss about question number first from NCERT book, page number 39. Okay, so I hope you have lot of sound. I try to arrange it. चलिए, so beta in this video we discuss about valency and formula of compound. So for the find the formula of compound we need first valency of element. Suppose it is sodium, it is an element, and here oxygen, it is also an element. So regarding to question number first, and in first question option first, sodium oxide means we try to form formula of sodium oxide, but before forming formula of sodium oxide we need valency of both element. So how we find valency, I have discussed it in previous video. In this video we try to solve your problem. So again I recall, first I do electronic configuration, general electronic configuration 283 2 8 10 and here 1. Total number of electron 11, it is equal to 11, here 2 and now 6. अगर आप कहें सर यहाँ पे आपने 8 लिखा, यहाँ पे 6 क्यों लिखा, एक्चुअली आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं आएगा तो आप कॉल करिएगा. इसका एक रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही हमने भरा है. अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम 8 लिखते, अदरवाइज जितने कम हैं उतने लिखते. कंडीशन क्या थी, इफ़ outermost electron, that is known as valence electron, is 4 or less than 4, then valency is equal to always number of valence electron. Here valency आपकी हो जाएगी 1. If valence electron is greater than 4, then valency equal to 8 minus valence electron. 8 minus valence electron. Valence electron means 6 electron. So here 2 electron. Got it? Just after, now we have valency of sodium, that is 1, and valency of oxygen, that is 2. What we do, how we form formula of sodium oxide? Actually first we do crisscross. अब ये जो नंबर होता है इसके बिलो में लिखेंगे और ये नंबर इसके बिलो में. तो आपका सोडियम था, बिलो साइड सोडियम 2 और ऑक्सीजन के 1, तो 1 हम लिखते नहीं. दैट इज़ फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड. ये किसका सोल्यूशन था, ये इसका सोल्यूशन था. सेकेंड सोल्यूशन एल्युमिनियम क्लोराइड. सो एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13 एंड क्लोरीन इज 17. सो फर्स्ट वी नीड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, ऐड करिए आप, आ जाएगा 17. 2 8 3. आई थिंक्स मैंने आपको बताया, इफ़ number of valence electron is 4 or less than 4, then valency is equal to number of valence electron. तो ये जो नंबर है 4 से छोटा है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है. हियर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, ये 4 से बड़ा नंबर है, देन वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 1. अब आपको वैलेंसी का पता चल चुका होगा. एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 एंड क्लोरीन 1. क्रिस क्रॉस कर दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई. आपका फार्मूला क्या बन के आएगा, AlCl. ये 3 इसके नीचे आएगा तो 3 हो जाएगा, 1 इसके नीचे आएगा तो कुछ भी नहीं. ये हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला है एंड ये हमारा सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थर्ड पे आते हैं, सोडियम सल्फाइड. सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, पहली बात तो सल्फाइड क्या होता है, इसमें सल्फर ग्रुप लगा होगा सोडियम के साथ. सोडियम के साथ क्या लगा होगा, सल्फर ग्रुप. तो सोडियम की वैलेंसी अभी आपने निकाला था 1 होता है. सल्फर का हम रफ वर्क कर लेते हैं. सल्फर एटॉमिक नंबर 16, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, it is greater than 4, then valency equal to 8 minus 6, that is 2. So here valency of sulfur 2, sodium 1. So formula of sodium sulfide is Na2S. Now it is your answer of question third. इसका one more question, magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide, it is 4 answer. Magnesium atomic number 12, it means general electronic configuration 2 8 and 2, valency equal to 2.
हाइड्रोक्साइड OH, इट्स वैलेंसी ऑलवेज OH माइनस, तो वैलेंसी इक्वल टू 1। यही जो चार्ज इस पे प्रेजेंट होता है दैट इज इक्वल टू वैलेंसी इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपकी मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी थी 2 एंड हाइड्रोक्साइड की कितनी थी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? अगर आपको यहाँ ना दिख रहा हो तो आ जाएगा MgOH होल ट्वाइस। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट that is present on page number 39 on NCERT book. So you can take a screenshot of this, and just after I try to discuss few more question which is based on few other concept. So now may I get this? Here he say write down the name of compound represented by the following formula. It is also present on page number 39, that is question 2. Question 2, write down name of compound write down name of compounds represented by following formula. Represented by following formula. ठीक है, following formula. स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला कंपाउंड है और दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस। Al2SO4 होल थ्राइस। अब इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम देखिए यहाँ पे है क्या, एल्यूमिनियम। तो आप लगा दीजिएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। दिस ग्रुप इज नोन एज सल्फेट ग्रुप, तो हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मीन्स सेकंड कंपाउंड CaCl2, CaCl2। सो फर्स्ट व्हाट इज दिस? कैल्शियम। बहुत सिंपल है। और कैल्शियम, कैल्शियम ये क्या है? क्लोरीन। सो हम लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फार्मूला दैट इज KnO3, KnO3। तो भाई साहब ये क्या है? दैट इज पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। दिस ग्रुप इज नोन एज नाइट्रेट ग्रुप। सो हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। सेकेंड CaCO3, CaCO3। अगर आपको पिछली वीडियो नहीं मिली है तो आप YouTube चैनल केमिकल वर्ल्ड पे जाइए, वहाँ पे पिछली वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप पहले दिन क्लास कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आंसर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। दिस इज कैल्शियम, कैल्शियम। दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनेट ग्रुप। जब हमने फार्मूला पढ़ाया तो उसमें बताया था कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपके फार्मूले थे। इस तरह से आपको क्या करना था? कंपाउंड से फार्मूला लिखना था और फार्मूले से कंपाउंड बनाना था। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। अगला क्वेश्चन है जो पेज नंबर 39 पर ही है, क्वेश्चन नंबर 3। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फार्मूला।
मतलब इनका है कि ये जो केमिकल फार्मूला होता है इसका क्या मतलब है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इन सिंबॉलिक फॉर्म। किसी भी केमिकल कंपाउंड को उनकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग सिंबल के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, केमिकल फार्मूला। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ द शॉर्टेस्ट वे, इट इज़ द शॉर्टेस्ट way of representation of chemical compound in symbolic form, by using बैलेंसी की मदद से। सपोज अभी किसी ने कहा आपको कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है, या किसी ने कहा सोडियम क्लोराइड का लिखना है, तो क्या करना होगा, पहले तो सोडियम की बैलेंसी क्या 1, क्लोरीन की क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा NaCl। बट यहाँ पे क्या था, अगर इसका नाम लिखते सोडियम क्लोराइड लिखते, बट ये केमिकल फार्मूला लिखा क्या है, सोडियम का सिंबल यहाँ पर है और क्लोरीन का यहाँ पर, तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दिया बट अकॉर्डिंग टू बैलेंसी। सो दिस इज केमिकल फार्मूला। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उसमें कितने एटम हैं। दिस क्वेश्चन आल्सो प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 39, मतलब it is question second and third. Now we discuss about question number 4. So may I erase this? You can take a screenshot. Just after we will discuss question number 4, that is also present on NCERT book page number 39. So you can write question, how many atom present in a, how many atom present, how many atom present in a, so यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनमें कितने एटम हैं। फर्स्ट H2S, सेकेंड PO4-3, PO4 3- and you can write O3, NaCl एक्सेट्रा। है तो बहुत कम है, सब ढेर सारे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो यू नीड टू फाइंड नंबर ऑफ एटम। हाउ मेनी हाइड्रोजन हियर 2 एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन 1, 2 + 1 that is equal to 3 atom. In this compound phosphorus 1, oxygen 4, 1 + 4 that is equal to 5 atom. Here oxygen 3 times, so 3 atom. सोडियम 1, क्लोरीन 1 that is equal to 2। वो करना क्या था, आपको जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट उनके नंबर को काउंट करना था, बट चार्ज को काउंट नहीं करना था। सपोज आई टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज H2SO4। हाउ मेनी हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, सो टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 7। इस तरह से आपको करना था। And now our next question, calculate the molecular formula of following. अगला क्वेश्चन है, that is also present, not present on page number 39, it is present on page number 40. So now may I erase this? Page number 40 NCERT book, NCERT book. Question, calculate the molecular masses of following. Question 1, calculate the molecular masses of following. Okay, so our first question,
H2O2Cl2, H2 comma O2 comma Cl2. There is lot of question. CH4 C2H6, CH4 C2H6, C2H4 NH3, C2H4 NH3. One more question. CH3OH, CH3OH. It is last question for current lecture, just after I finish my lecture. So first, how we do? For finding the molecular formula, we need atomic mass of the atom. तो आपको मैंने ये पहले बता दिया कि आपको ये लर्न करना था. हाइड्रोजन 1 atomic mass, but it is 2 times, so multiply by 2. Its atomic mass or molecular mass is 2 unit. Oxygen 16, but there is 2 atom of oxygen, so multiply by 2, that is 32 U. Chlorine 1 atom, 35.5 multiply by 2, that is equal to 71 unit. Unified mass इसे आप कहते हैं. Carbon, its mass 12, hydrogen mass 1 4 time, that is equal to 16 U. Carbon 12 2 times multiply by 2 plus hydrogen 1 6 times multiply by 6, 24 plus 6, that is equal to 30 unit. Got it? बहुत सिंपल है. अगर आपने पिछली वीडियो को देखा, नहीं देखा तो आप हमें डाउट में लिखिएगा, मैं आपको पुरानी वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप जा कर के अपने लेक्चर में वीडियोस को देख सकते हैं. 12 multiply by 2, hydrogen 1 multiply by 4, 24 4 total 28 unit. Here nitrogen atomic mass 17, hydrogen 1 multiply by 3, sorry, nitrogen 14, total 17 unit. Carbon 12, hydrogen 1 multiply by 3 plus oxygen 16 plus 1. So ऐड कर लीजिए 4 plus 16 plus 16 plus 1, 33 unit. So it is molecular formula of given compound. So आपको क्या करना है, ये सारे फार्मूले, सारे क्वेश्चन अपनी बुक में सॉल्व करने, सॉरी नोटबुक में सॉल्व करने हैं. अगर आपको फिर से कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. अगले दिन जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.